Very good evening, children. Today we'll learn the next important application of derivatives, that is increasing, decreasing function. Just by looking at the function and differentiating, we can say that is this an increasing function or this is an decreasing function. Like if I take the simple example of x squared. This is my x square function. If I go from left to right, as the value of x goes on increasing, x square will also increase. That is, I can say that suppose I have two values x1 and x2. Suppose I have two values x1 and x2 such that x1 is less than x2. Imagine करो ये x1 है और ये x2 है. तो x1 x2 से छोटा है and here my f of x is given as x square. So if x1 is less than x2, if I do squaring on both sides, इस inequality को if I square, I'll get x1 square less than x2 square. What is x1 square then? F of x1 less than x2 square क्या है? F of x2. So what I'm getting, for every x1 less than x2, my function values are also less. मतलब अगर ये छोटा है तो ये y वैल्यू भी छोटा आएगा, ये बड़ा है तो ये y वैल्यू इससे बड़ा आएगा. If this thing happens, that is, if I say if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, then I say that function is increasing. You can see here function increase हो रहा है. As I go from left to right, y goes up. So function is increasing. So I'll say that f is increasing on that particular domain. क्या हो रहा है? f increase हो रहा है. ठीक है? But if I say x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2. उल्टा हो रहा है. x1 is smaller but function value is greater. Then I will say f is strictly decreasing. Now why strictly? I'll explain you. F is strictly decreasing. Same thing can be if I get f of x1 greater than equal to f of x2. अगर equal to sign आ गया, then I will say that f is decreasing function. What will I say? Equal to आया तो decreasing, equal to नहीं आया तो strictly decreasing. Sometimes it can also happen that for x1, x2, I will get f of x1 equals f of x2. A very well known example, line parallel to x-axis. Yes. Then I say f is a constant function. क्या बोलेंगे? f constant function बोलेंगे. यहाँ पर भी equal to sign आ गया तो f is strictly increasing function. तो see here, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लगाया ही नहीं. बिना डेरिवेटिव के I am able to check for small functions. I can take some values, I can apply the inequalities what I have done here and get the answer. But as and when the function becomes complicated, we can think of derivative. Now by derivative कैसे पता करेंगे? देखो. So if I think of derivative, if my f dash x is positive, if my first derivative comes out to be positive, इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग. स्लोप अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इफ माय स्लोप दैट इज f dash x कम्स नेगेटिव, आई विल से फंक्शन इज डिक्रीजिंग. क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो इफ आई से यू वांट टू डू बाय डेरिवेटिव्स, जस्ट अप्लाई डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है. I have to check for what values of x I am getting positive answer, for what values of x I am getting negative answer, and accordingly you can write increasing or decreasing function. So first one, show that the function given by f of x equals 3x plus 17 is increasing on r. They have given the answer that हमें बताना है function increase हो रहा है real numbers पे. So there are two things we can do. So I'll first start by the normal method.
I'll say that let us say x1 is less than x2 for x1 x2 belongs to real. I'm assuming two numbers such that x1 is less than x2. ठीक है. Now from this I'll try to come up here. मुझे x मालूम है, अभी क्या चाहिए 3. So multiplying by 3 on both sides. So if I multiply, the inequality remains the same. Now I will add 17 on both sides. Still inequality remains the same. Correct? तो ये क्या हो जाएगा f of x1 और ये हो जाएगा f of x2. So what you are getting? So for x1 less than x2, you are getting f of x1 less than f of x2 for x1 x2 belongs to real, therefore my function is increasing. ये less than है और ये भी less than आया, it means function is increasing. This is one way. Another way was second method, you can say we'll apply derivative. क्या करेंगे? Derivative apply करेंगे. तो f dash x क्या आएगा 3, 17 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, which is by default positive. Let x be anything now, my answer will be positive. So f dash x is positive for all x belongs to real. For all x belongs to real, therefore I can say f is increasing on x belongs to R. Any method you can use because they are not mentioned. ठीक है, simple sum था. So both ways are correct. Second one, they have given f of x as e raised to 2x. Again the domain is real numbers. Again I can say that let x1 x2 belongs to R such that x1 is less than x2. Correct? Taking e multiplying by 2, क्योंकि 2x चाहिए, so 2x1 less than 2x2. Taking e power on both sides, correct? इसको e से raise करना है ना, therefore e raised to 2x1 will also be less than e raised to 2x2. बराबर? e raised to x1 क्या है? f of x1 less than f of x2. Therefore I can say function is increasing on R. ठीक है, ये एक मेथड है. आप चाहिए तो डेरिवेटिव भी लगा सकते हो. If you apply derivative, you have to take 3 cases. When x equal to 0, let us do that also. So हम डेरिवेटिव लगाते हैं f dash x. Second method, okay? f dash x क्या आएगा? 2 e to the power 2x. Correct? Now there are 3 cases. What happens when x is equal to 0? x 0 रहा, e raised to 0 कितना आएगा? 1. That is f dash 0 क्या मिलेगा आपको? 2, which is greater than 0. मतलब 0 पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. Now when I'll say x is greater than 0, जब x पॉजिटिव होगा, by default ये नंबर पॉजिटिव आएगा. I can say 2 e raised to 2x पॉजिटिव है. Again function is increasing. When x is less than 0, 2 e raised to minus 2x हो जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव है. इसका मतलब भी क्या होता है? 2 upon e raised to 2x. Again the answer is positive, मतलब greater than 0 है. So in all cases it is positive, so function is increasing on real numbers. ठीक है? Now third one, very important sum. They have given f of x equals sin x. ठीक है? So I will differentiate. Let us differentiate and see. So f dash x क्या आएगा? cos x. अभी दो क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट बोला है इंक्रीजिंग है 0 to pi by 2 में एंड डिक्रीजिंग है pi by 2 से pi में. इंक्रीजिंग 0 to pi by 2, decreasing pi by 2 से pi. So if I talk about cos x,
cos x is positive in first quadrant, so I can say f dash x का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज cos इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो आई कैन से देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2, ठीक है। नाउ अगेन आई टेक f dash x दैट इज cos x, मेरा cos x पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा नेगेटिव, cos का आंसर नेगेटिव है, सो f dash x इज 0, therefore I can say f is decreasing in पाई बाय 2 से पाई, ठीक है, ये हो गया। अब नाउ देखो 0 to पाई बाय 2 में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 2 से पाई में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, आधे इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, आधे इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 I can say f is neither increasing nor decreasing in 0 to pi। अगर पूरा इंटरवल 0 to pi लिया I can't say कि फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, क्यों कि 0 to pi by 2 में इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन 0 to pi। राउंड ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है, सो ग्रेटर देन 0 लिया और लेस देन इक्वल टू नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, नाउ सम्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये पहला सम लेते हैं एंड दूसरा विल टेक f of x 2x cube minus 3x square 36x plus 7, ठीक है। लेट अस सॉल्व दीस सम्स नाउ। इंटरवल्स पूछा है तो फर्स्ट थिंग इज अप्लाई द डेरिवेटिव, विदाउट एनी डाउट अप्लाई डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 4x minus 3। डेरिवेटिव लगाने के बाद विदाउट एनी डाउट पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0 इन योर माइंड। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, सो इफ आई पुट f dash x as 0 I will get 4x minus 3 is equal to 0, therefore x कितना आएगा 3/4, मतलब एग्जैक्टली 3/4 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है, so whenever dy by dx becomes 0 it means tangent is parallel to x axis। क्या बोलेंगे, tangent is parallel to x axis। अगर साइन ग्राफ लिया आपने तो पाई बाय 2 के ऊपर 0 होगा, अब पाई बाय 2 से लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 2 से राइट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। सो हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि टैंजेंट पैरेलल कहां पर है, क्या फाइंड करेंगे टैंजेंट पैरेलल कहां पर है, फिर चेक करेंगे स्लोप नेगेटिव कहां आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव कहां आ रहा है, स्लोप नेगेटिव कहां आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव कहां आ रहा है। सो वंस यू पुट देम एज 0, उसके बाद ड्रॉ नंबर लाइन, राइट माइनस इंफिनिटी ओवर हियर प्लस इंफिनिटी ओवर हियर एंड व्हाटएवर रूट्स यू गेट राइट दैट असेंडिंग ऑर्डर में। सो एक ही रूट मिल रहा है 3/4, x की वैल्यू 3/4 है, 3/4 में फंक्शन क्या दे रहा है 0 दे रहा है, क्या दे रहा है 0। अब यहां से स्टार्ट करो, गिव प्लस साइन ओवर हियर एंड गिव माइनस साइन ओवर हियर। क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर देंगे प्लस साइन और इधर देंगे माइनस साइन। सो फ्रॉम हियर आई अंडरस्टैंड दैट 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्यों कि आंसर पॉजिटिव है, और माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्यों कि आंसर नेगेटिव है। सो आई कैन से देयरफॉर f इज, इंटरवल पूछा था ना, सो f इज इंक्रीजिंग इन 3/4 इंफिनिटी, f इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी 3/4, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल टैंजेंट्स निकाले एंड देन प्लस माइनस से डिसाइड किया, प्लस मींस इंक्रीजिंग, माइनस मींस डिक्रीजिंग, ठीक है।
we'll learn more in detail about this method. What happens when the powers are there. Right now हम मान के चल रहे कि सारे फैक्टर्स लीनियर है, ठीक है. लेट्स मूव टू सेकंड सम. योर आइडिया विल बी मोर क्लियर. इधर f डैश x क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर. अब क्या करेंगे, वी विल पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 0 पुट करेंगे, हमें पैरेलल टैंजेंट मिलेगा. क्या मिलेगा, पैरेलल टैंजेंट. I'll divide by 6, so x square minus x 6 equal to 0. So x minus 3, x plus 2 equal to 0. So turning points क्या आ रहे हैं, या तो x equal to 3 या तो x equals minus 2, या तो x equals 3 या तो x equals minus 2. बनाओ नंबर लाइन. अगेन यहाँ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. असेंडिंग में पहले क्या आएगा, इधर -2, बाद में क्या आएगा 3. अगेन स्टार्ट यहां से करना है. दिस विल बिकम प्लस, फिर इधर आ जाएगा माइनस, फिर इधर आएगा प्लस. ऑल्टरनेट स्टार्ट करना है, यहां से प्लस फिर माइनस फिर प्लस. आपका सम हो गया. देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग. जहां प्लस है वहां फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फंक्शन इंक्रीज कहां हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से -2 एंड 3 इंफिनिटी पे. इन दोनों जगह इंक्रीज हो रहा है तो इसका यूनियन. और फंक्शन डिक्रीज कहां हो रहा है, -2 और 3 के बीच में. ठीक है. अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम और एक मेथड करते हैं इसी का, उसमें लिखना पड़ेगा आपको. लेट अस सी. सो मेरा f डैश x बेसिकली देखा जाए, आई एम राइटिंग सेकंड मेथड, समथिंग थ्योरेटिकल मेथड. ठीक है. मेरा f डैश x क्या आ रहा है, 6 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, दैट इज 6 टाइम्स, आई थिंक ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर. उसको फैक्टराइज किया डेरिवेटिव को तो ऐसा कुछ आएगा. नाउ फॉर इंक्रीजिंग के लिए केस 1, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए केस 1 क्या आएगा, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव. सो इंक्रीजिंग 6 टाइम्स x माइनस 3 x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव बराबर. फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब वो पॉजिटिव होता है. ये पॉजिटिव कब होगा, दो तरीके में पॉजिटिव होगा. केस 1 x माइनस 3 भी पॉजिटिव है एंड x प्लस 2 भी पॉजिटिव है. अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव आए तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा. केस 2 दोनों नंबर नेगेटिव आए तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा. दैट इज x माइनस 3 नेगेटिव एंड x प्लस 2 भी नेगेटिव. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव तो भी पॉजिटिव. यहां पर आंसर क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन -2. तो कौन सा नंबर है जो -2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो यहां इंटरवल आएगा 3 इंफिनिटी. क्या आएगा, 3 इंफिनिटी. देखो ये आ गया. अब दोनों नेगेटिव है, मतलब x 3 से कम चाहिए एंड x -2 से कम चाहिए. करेक्ट. 3 से भी कम, -2 से भी कम, तो क्या लेंगे, -2 से कम लेंगे. यहां पर इंटरवल आएगा -इंफिनिटी -2. तो आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा. तो घूम फिर के आप यहीं पर आ गए. करेक्ट. अब डिक्रीजिंग के लिए मैं अगले समय बताऊंगा आपको डिक्रीजिंग के लिए थ्योरेटिकल मेथड क्या है. ओके. नेक्स्ट सम चिल्ड्रन. अगेन आई हैव टू चेक द इंटरवल्स इन विच function is increasing and decreasing. So I'll differentiate. तो क्या आएगा, -6 -4x. Correct. So I'll put first derivative as 0. Put f dash x as 0. तो क्या आएगा, -6 -4x equals 0. That is
माइनस 6 इज इक्वल टू 4x, सो x आएगा -3/2. तो -3/2 is the checking condition, correct? Plus infinity, minus infinity. Okay. Now say children, though you have plotted this graph, we have to be very careful over here. While using this method when we use, by default x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए एंड x का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए. क्या होना चाहिए? x का कोएफिशिएंट 1. तो ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा. सबसे पहले बनाओ x का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव. दिस इज एप्लीकेबल only if you take x का कोएफिशिएंट as 1 and that too positive. तो I will take -4 कॉमन, तो क्या मिलेगा? x प्लस 6/4, है ना? करेक्ट? ऐसे ही आएगा -4 x प्लस 6/4. अब I will put x प्लस 6/4 as 0. तो मेरा x कितना आएगा? -3/2. आंसर सेम आएगा. नाउ सी, ये -3/2 आया, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी. हम यहाँ पर किसको प्लॉट करते हैं? डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं, मतलब इसे. तो हम अभी इसको प्लॉट कर रहे हैं इसके हिसाब से, मतलब x प्लस 6/4 के हिसाब से. ये पॉजिटिव आना चाहिए था, ये नेगेटिव आना चाहिए था, बराबर. बट इस नंबर को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, सो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. प्रीवियस केस में यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा था तो ये प्लस और माइनस था. अब यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है? नेगेटिव. हमने इसको प्लॉट किया है. x जब -3/2 होगा तो 0 आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा. बट ये वाला पार्ट -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो नेगेटिव. ये वाला पार्ट -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव. नाउ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -3/2, है ना? यहाँ इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज कहाँ हो रहा है? -3/2 से इंफिनिटी. रिमेंबर, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव एंड 1. ठीक है? क्लियर? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम चिल्ड्रन, लिटिल बिट लेंथी आल्सो. हमें बताना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग. क्या बताना है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग when x is greater than -1. फंक्शन इंक्रीज हो रहा है when x is greater than -1. So let us differentiate this. So dy by dx क्या आएगा? log का 1/1 plus x माइनस इसका u by v आ जाएगा, तो 2 plus x the whole square. ये 2 plus x, 2x का 2 माइनस 2x, 2 प्लस x का 1. तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x द होल स्क्वायर. कट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस x द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस x, सो 1 प्लस x 2 प्लस x द होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x द होल स्क्वायर. 4x 4x 4 कट, तो क्या आ रहा है? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x द होल स्क्वायर. ये अभी से dy by dx निकाला है. I want to check it is increasing. So for function to increasing के लिए what I want dy by dx, that is my derivative, should be greater than 0. Strictly increasing के लिए क्या होना चाहिए? Greater than 0. मेरा dy by dx क्या है? x square 1 plus x 2 plus x the whole square greater than 0. I don't know about this x, तो मैं ये मुझे पता है ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आने वाला है स्क्वायर.
So if I take this positive on right side, ये नहीं ले सकता हूं मैं यहाँ पर, I'll only take this क्योंकि मुझे पता है ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये जब यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा 0. So x square upon 1 plus x greater than 0 आएगा. करेक्ट? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हमें चेक करना है ये कौन सी x वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा. अभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऊपर से x कुछ भी रहे, माय न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि x स्क्वायर है. अब ये नंबर पॉजिटिव कब होगा? आई वांट दिस होल नंबर टू बी पॉजिटिव. दिस होल नंबर विल बी पॉजिटिव only if my denominator is positive. Correct? x square upon 1 plus x positive है if and only if my denominator is positive. बराबर? डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुआ तो ही ये नंबर पॉजिटिव आएगा. डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा? when x is greater than -1. Correct? Therefore function is increasing for x greater than -1. क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा. ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? when x is greater than -1. Clear? Again a very important sum, children. You need to show that function is increasing in the closed interval 0 to pi by 2. This sum is very important. It can come for 6 marks. So without any doubt, I will find the derivative dy by d theta. इधर इसको ले लेते हैं. That is -1 plus u by v rule आएगा. That is 2 plus cos theta the whole square. So denominator into 4 sin theta का 4 cos theta माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा. सो इट बिकम्स -1 प्लस 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये आएगा 2 plus cos theta the whole square. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 plus cos theta the whole square plus 8 cos theta, ये हो जाएगा +4 whole upon 2 plus cos theta the whole square. इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा -4 cos theta minus cos square theta plus 8 cos theta plus 4 upon 2 plus cos the whole square. 4 कट, 8 minus 4 कितना आएगा? 4. सो हो जाएगा 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta the whole square. Again function increasing बताना है. So for increasing function के लिए what should be my derivative? That is dy by d theta क्या होना चाहिए? Greater than 0. Means 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta square. 0 से बड़ा होना चाहिए. Yes? तो ये यहां पर चला जाएगा. So I will get 4 cos theta minus cos square theta greater than 0. I can take cos theta common from here. So cos theta 4 minus cos theta क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. किसके लिए? 0 to pi by 2 के लिए. Now we know that सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए तो cos theta will be 0 less than equal to cos theta less than equal to 1. करेक्ट? ये क्लोज इंटरवल बोला है तो 0 से 1 आएगा. 0 to 90 के बीच में मुझे माइनस cos theta चाहिए. आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन. सो माइनस 0 ही रहेगा. ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी विल चेंज.
-1 बराबर। यस, अभी क्या चाहिए मुझे, 4 माइनस चाहिए, आई विल ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, सो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 1 3। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहां तक? अभी आई वांट टू मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से। लेट अस सी दैट। So see, we started with cos theta from 0 to pi by 2, 0 से लेकर pi by 2 के बीच में by default cos theta पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव आ गया। मुझे सिर्फ चेक करना था क्या ये पॉजिटिव आता है, इट इज कमिंग पॉजिटिव। क्या मिल रहा है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 4। सो 4 माइनस cos थीटा 3 और 4 के बीच में पॉजिटिव है, ये कब होगा, when theta is lying between 0 and pi by 2, so both are positive, that is since cos theta is positive for 0 to pi by 2, also हमने प्रूव कर दिया 4 minus cos theta is positive in 0 to pi by 2, therefore dy by d theta पॉजिटिव आएगा in 0 to पाई बाय 2। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन लिखा है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, ओके, थैंक यू।